आज हम लोग उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है उसके बारे में जानना। ओके, मैनी थिंग्स लिव्स इन आवर सराउंडिंग्स, मैनी लिविंग थिंग्स live in our surrounding that is not visible to our eyes are known as microorganism, that is microorganism। confirm हो गया? living things that is found in our surrounding is called microorganism, but the problem is that we cannot see with our naked eyes, only visible with the help of powerful microscope। okay, tiny organism that can only be visible with the help of powerful microscopes are called microorganism। confirm हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। the study about the microorganism is called microbiology। it means the branch of science in which we study about the microorganism is known as microbiology। लिख लिया कॉपी में फटाफट? ओके, चलो बात करते हैं। साइंटिस्ट आर स्पेशली engaged in studying about the behavior of the microorganism। those scientists are called माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, बैक्टीरिया हमारे चारों ओर पाया जाता है। ओके, बैक्टीरिया लिव एवरीवेयर, माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव एवरीवेयर, बट व्हाट मेक्स देम लिव इन ऑल द हार्श कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस? व्हाट मेक्स देम सर्वाइव इन द हार्ट or harsh conditions? that is the cyst। this is the covering of the fats and over the body of the microorganism, and this hard covering protect them to live in everywhere, either in the favorable condition or in the unfavorable condition। then what is the function of cyst? cyst help them to survive in the डिफ़िकल्ट सिचुएशन और कंडीशंस। ओके, कन्फर्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल गया कि वो हर जगह क्यों रहता है। आइदर दे आर वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, आइदर स्वैम्पी एरियाज। ओके ओके, पता चल गया सिस्ट के बारे में। चलो आगे बात करते हैं। वी थिंक्स दैट आइदर द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस और हार्मफुल टू अस। वी विल लेटर talk about these things। okay, first of all we know what are the different types of microorganisms, or for better study we will divide or categorize the microorganism into 4 parts, and one of them is bacteria। first category of the microorganism is bacteria, and the second is fungi, third is protozoa, fourth is algae, and not in the list but this is the viruses। बात करेंगे आखिर वायरसेस को हमने कैटेगरी के नाम पे क्यों लिखा। आखिर वायरसेस को हमने 4 कैटेगरी में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वायरस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे अलग है। दीज ऑल आर लिविंग इन फ्री इन्वायरमेंट, बट viruses only became active or shows the character of living things when they enter in our body। अभी तो आपको पता ही होगा, we are in the situation of the epidemics। okay, coronaviruses, why it is very harmful to us? because in environment it is non-living but became active when enters into our body, so we need to protect our body from the invasion of viruses। we must take care so that virus cannot enter through our nose, through our mouth, with the help of the contact of the other things where there is viruses। okay, why virus is very
unfriendly to us because virus is non-living when it is outside the body, but when they enters in our body they become active. They uses the resources of our cell in our body. हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स के पास होता है खाने का चीज़ रिसोर्सेस उस सबको वो यूज करता है. When viruses enter into our body, uses the resources. क्या करता है? Uses the resources and they multiply, grow again and grow again. ये क्या होता है? Only living होता है कब? जब क्या करता है? Enters into body of लिविंग थिंग्स. और क्या करता है? मल्टीप्लाई कैसे करता है? ग्रो कैसे करता है? यूजिंग द रिसोर्सेस ऑफ सेल्स. क्या करता है? ग्रो कैसे करता है? यूजिंग द रिसोर्सेस ऑफ सेल. थोड़ा सा वायरस के बारे में जानकारी. वी विल फर्दर डिस्कस मोर अबाउट द वायरसेस, बट एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टारगेट द फर्स्ट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बैक्टीरिया. We all will listen something is caused by the bacteria. Either some diseases are caused by the bacteria in living things, either the human being, either in the plant, but sometimes it is essential for us. Curding of milk is the good example of the bacteria is friendly to us. But communicable diseases, typhoid, cholera, these are caused by the bacteria. Therefore sometimes bacteria is not friendly to us, but sometimes it is friendly to us. Vaccine, penicillin, antibiotic is first made with the help of bacteria and the fungi. It means bacteria either helpful to us or harmful to us. Okay, let us move the further. We know about some characteristic of the bacteria. Okay, bacteria is single celled organism. Single celled organism. It is, that's why it is called unicellular, because made up of only one cell. And you know there is a cell wall. Outer covering of the cell is called cell wall. ओके, देयर इज अ सेल वॉल. अब ये बात जान लेना, सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल में होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है. स्पेशल बात है इसके पास, बैक्टीरिया है सेल वॉल. याद रखना, बैक्टीरिया के पास प्लांट की तरह क्या है? सेल वॉल है. याद रहेगा, प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास केवल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है. जाके आगे वाला चैप्टर देखना, आपके बुक में लिखा हुआ है सेल चैप्टर, फटाफट पता चल जाएगा. और वहाँ पता करना सेल वॉल का फंक्शन क्या है. और सेल वॉल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इट मीन्स फॉर अ लिविंग थिंग्स दे मस्ट हैव सम लिविंग प्रोटोप्लाज्म. All the essential food material is in the cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance present inside the cell. Okay, cytoplasm के बारे में भी देख लेना. सेल वाला चैप्टर फटाफट बुक निकाल के देखो. अभी हो सके तो तुरंत पॉज करो वीडियो को और खटाक से निकाल के देखो सेल वाला चैप्टर. देखो वहाँ पे सेल वाला क्या प्लांट और एनिमल दोनों में होता है या केवल एनिमल में? अगर लगे एनिमल में होता है तो मुझे बताना, लेकिन ये होता सिर्फ प्लांट में है. तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया सेल वॉल होने का लगता है प्लांट की तरह है, लेकिन बिहेवियर उसका एनिमल की तरह है. अब देख लो, सिंगल सेल पता चल गया, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, ये सब तो है, बट किसी को भी वेल फंक्शन करने के लिए न्यूक्लियस चाहिए. पता है सेल का मेन कंपोनेंट क्या हो गया? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म. उसके अंदर होता है ब्रेन ऑफ द सेल, इसको न्यूक्लियस. बैक्टीरिया के पास ब्रेन ऑफ द सेल है ही नहीं भाई, न्यूक्लियस है ही नहीं, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है. और न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस के अंदर होने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, यानी कि उसके पास न्यूक्लिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है. न्यूक्लिक मटेरियल अवेलेबल
नहीं है। ये इसका मतलब दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लिक मटेरियल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। सेल आर टू टाइप, आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फटाफट देखना सेल वाले चैप्टर में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स आर दो सेल्स लैक ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लिक मटेरियल। याद हुआ कंफर्म, न्यूक्लिक मटेरियल या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको प्रोकैरियोट, और नहीं तो उसको क्या बोलेंगे सर, यूकैरियोट। यूकैरियोट्स। इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोट्स। और अगर न्यूक्लियस बिल्ड, यानी हमारे पास ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास फुल डेवलप्ड सेल्स होते हैं। क्या हो गया ये, वो हो गया आपका यूकैरियोट्स। ठीक है, हम लोग यूकैरियोट्स है। बैक्टीरिया क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स। याद रहेगा बात, सिंगल सेल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, बट लैक ऑफ न्यूक्लियस। पता चलता है न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है रेस्पायर करने का, सांस लेने की बात आती है। तो बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कैन सर्वाइव एवरीवेयर। इट विल, दे आइदर नीड द ऑक्सीजन और दे लिव विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आगे बात कंफर्म, इट मीन्स द रेस्पिरेशन इज आइदर एरोबिक और एनएरोबिक। सांस कैसे लेता है भाई, या तो रेस्पिरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। याद होगा फर्मेंटेशन अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है, जो फूड आइटम आप छोड़ देते हो रात में 2-3 दिनों बाद उसमें फाउल स्मेल आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खाने को स्मेल खराब कर देता है, उसको टॉक्सिक बना देता है ड्यू टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद होगा जो फ्रूट्स होते हैं उससे क्या बनता है, बियर्स। जो आपको शराब वगैरह बनता है उसमें भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और भी बातें करेंगे हम लोग, फटाफट पहले बात करते हैं हमने क्या देखा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक सिंगल सेल का बना होता है, उसके पास सेल वॉल होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म होता है सेल वॉल, सेल के अंदर, बट न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। फटाफट पता चल गया। अब देखते हैं, एरोबिक बता दिया हमने, या तो वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जिंदा रहेगा या तो विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जिंदा रहेगा। अब बात आता है खाता कैसे है भाई। इसके पास तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रहेगा। Most of the bacteria do not have chlorophyll, though they are either saprophytes or symbiotic or parasite. Therefore, they are either parasite, either saprophyte or symbiotic. याद होगा rhizobacterium bacteria live in symbiotic relationship in the root nodules of the plant. Confirm है? Okay. चलो बात करते हैं, पता चल गया। तो बैक्टीरिया क्या करता है, हाउ बैक्टीरिया फीड ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। इट मीन्स बैक्टीरिया रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंफर्म रहेगा, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पे क्या सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या कर देता है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। एंड बैक्टीरिया सक the nutrients from the simple soluble substance। याद आया, बैक्टीरिया क्या करता है, सेप्रोफाइट होता है क्योंकि वो डेड डिके ऑफ प्लांट और एनिमल को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। इसका मतलब इट हेल्प्स अस टू क्लीन द इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर याद आ गया, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता, पता चल गया। नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है, याद आ गया, क्योंकि ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट को देता है राइजोबियम बैक्टीरिया। याद आया, फटाफट बात करते आगे। पैरासाइट पता चल गया, क्या करता है, वो दूसरे प्लांट पे रह के होस्ट पे अपना रहता है और खाना खाता है। ठीक है, समटाइम इट इज पैरासाइट, याद रहेगा, समटाइम इट इज पैरासाइट, आइदर सेप्रोफाइट और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खाने का पता चल गया भाई, आइदर बैक्टीरिया क्या होगा, सेप्रोफाइट होगा क्योंकि उसके पास
यानी ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके पास। कौन सा न्यूट्रिशन है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल। याद रखना, सिर्फ एक ही बैक्टीरिया उसके पास क्लोरोफिल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। आगे बात करेंगे हम लोग। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो होता है उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, सिर्फ वही अपना खाना बनाता है ना। ये क्या है? ये अपना खाना खुद बनाता है, यानी ये हो गया सेल्फ प्रिपेयर फूड। बट उसके अलावा जितना है वो सब क्या करता है भाई? और जितने हैं वो सब क्या करते हैं कि अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना लेता है, या तो सेप्टोफिटिक या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है। चल गया फटाफट। अब देखते हैं अलग अलग शेप कौन कौन से होते हैं। अलग अलग शेप होता है बैक्टीरिया का, फटाफट अपने बुक में देख लेना। अलग अलग शेप होता है। रॉड शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं बेसिली, स्फेरिकल बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकी, और स्पाइरल शेप में जो होता है उसको स्पाइरेला, और कॉमा शेप में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विब्रियो। क्या बोलते हैं उसको? विब्रियो। याद आया? फटाफट समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो ठीक है, राइट इट डाउन इन योर कॉपी लाइक अ नोट्स बनाओ इसको। चलो बात करते हैं कुछ और बैक्टीरियाज के बारे में। इचेरिचिया कोली बैक्टीरिया लिव इन आवर इंटेस्टाइन और हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी एंड के। याद रहेगा कुछ अच्छी चीज़ें, फटाफट आगे देख लो। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड नॉस्टॉक बैक्टीरिया दे आर क्या? हैविंग क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अब ये रहता है कहाँ है? तो ये यानी कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया रहता है सरफेस ऑफ वाटर पे, हरा हरा आपने देखा होगा, पूरा जमा हुआ रहता है, फ्लोट करता रहता है। और नॉस्टॉक बैक्टीरिया रहता है कहाँ पे? राइस वाले फील्ड में, जहाँ पे धान उगता है ना, वो पूरे सरफेस पे, ग्राउंड पे जहाँ पानी भरा रहता है बहुत दिनों तक, उस सरफेस पे आपको नजर आएगा नॉस्टॉक बैक्टीरिया। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते, याद रखने का। वैसे एक और बैक्टीरिया होता है, नाम बता दो। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल में आता है स्पाइरुलिना बैक्टीरिया। याद रहेगा, एग्जाम में आता है स्पाइरुलिना बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है प्रोटीन रिच फूड बनाने में और विटामिन बी के टैबलेट्स बनाने में। याद रहेगा, विटामिन बी के टैबलेट्स बनाने में कौन सा बैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया स्पाइरुलिना। फटाफट नेक्स्ट पे सर्च करना और देखना इमेज कैसा होता है। ठीक है, अभी बताते हैं आगे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फ्यूजन के द्वारा। दे डिवाइड their body in about 20 to 40 minutes into two parts and they start reproducing, and then some bacteria, that is the parasitic bacteria, they causes diseases. आगे बढ़े हम लोग। How they are harmful to us? They cause diseases like typhoid, cholera and tetanus. Typhoid, tuberculosis, cholera and tetanus, whooping cough, sore throats are some diseases impact in our body. हम सबके सोसाइटी में ये नुकसान पहुंचाता है, यानी ये हमारे लिए हार्मफुल है। चलो कुछ और बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा भी है। चलो बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। कुछ बैक्टीरिया जो क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है जो भी हमारे आसपास के वेस्ट है, यानी इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। दैट्स वाई दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड डिकम्पोजर। ओके, दे हेल्प टू मेक द बायोगैस एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। बायोगैस पता होगा, जो गोबर होता है ना, उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद जो गैस निकलता है दैट इज बायोगैस यूज्ड इन होम फॉर मेकिंग द फूड। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ एलपीजी बनता है ना सिलेंडर पे, वैसे ये गैस है बायोगैस जिससे खाना बनता है। नेचुरल गैस है ये। क्या है? नेचुरल गैस है। ज़्यादातर मीथेन रहता है, पढ़ोगे आपने, पता होगा मीथेन रहता है इसके अंदर। मीथेन और ब्यूटेन रहता है, कुछ हाइड्रोकार्बन। मीथेन CH4, ब्यूटेन C4,
H10। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। यानी ये बायोगैस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मैन्यूर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और डिकम्पोज कर देता है जितना वेस्ट हमारे आसपास होता है। हमारे लिए क्या हो गया, ये गुड थिंग्स हो गया उसके बारे में, जो हमारे लिए अच्छा काम करता है। कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया प्लांट को हेल्प करता है। वो बैक्टीरिया है कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करता है वो, एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन ले लेता है, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देता है, जिसको बैक्टीरिया बाद में अमोनिया यानी प्रोटीन बनाने में यूज करता है। ये आपको मिलेगा कौन से टॉपिक में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बार जल्दी से बता दूं क्या करता है एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन होता है, जब लाइटनिंग होता है तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर अब बदल जाता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब बारिश के पानी में मिलता है तो क्या बन जाता है, फटाफट कॉपी में लिखते रहना, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन, लाइटनिंग हुआ बन गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रेन वाटर में मिक्स हुआ बन गया नाइट्रिक एसिड। कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन एडो, लाइटनिंग, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, रेन, नाइट्रिक एसिड fall to the earth and rhizobium bacteria use the nitric acid to give nitrates or nitrites. Nitrates and nitrites are used by the plant to make the plant protein, that is ammonia. ओके, अमोनिया यूज हो गया प्लांट के द्वारा, प्लांट ने खाना बनाया, यानी पूरा नाइट्रोजन कहाँ चला गया, प्लांट के बॉडी में। प्लांट के प्रोडक्ट को हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में चला आया, यानी पहले वो प्लांट प्रोटीन बना, यूज़ करने के बाद एनिमल प्रोटीन बन गया, फिर प्लांट और एनिमल दोनों डाई करेगा तो फिर से वो कहाँ चला जाएगा, अमोनिया, सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल से कुछ अमोनिया फिर से प्लांट के द्वारा यूज होगा और जो रिमेनिंग अमोनिया होगा वो फिर से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा और फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया ना भैया, हो गया तैयार नाइट्रोजन साइकिल। बार बार सुनना इस चीज़ को, पता चल जाएगा, याद हो जाएगा नाइट्रोजन साइकिल क्या है। कुछ बैक्टीरिया हमको कर्ड बनाने में भी हेल्प करता है, आगे बढ़े, विनेगर बनाने में हेल्प करता है, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है क्या करने में, लेदर इंडस्ट्री में। ठीक है, क्या करता है बैक्टीरिया, हेल्प इन मेकिंग द कर्ड, विनेगर एंड इन द लेदर इंडस्ट्रीज। याद रखेगा, एंड इन लेदर इंडस्ट्रीज। ओके, कंफर्म हो गया, बातें समझ में आ गई। कुछ और बात बताए बैक्टीरिया के बारे में, चलो फटाफट इसको कॉपी में लिखो। चलिए कुछ और जानते हैं बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है, या हार्मफुल है। बैक्टीरिया का यूज किया जाता है मेडिसिन में, क्या बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए। एंटीबायोटिक और वैक्सीन, एक्चुअली दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ डेड एंड वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ध्यान से सुनना, वो जो एंटीबायोटिक होता है और वैक्सीन होता है, वैक्सीन तो इंजेक्ट किया जाता है, एंटीबायोटिक हम लोग टैबलेट्स के रूप में लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है जो डिजीज करता है अपने को, उस बैक्टीरिया का डेड सैंपल यूज किया जाता है। ओके, व्हेन द डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्टेड इन आवर बॉडी और swallowed, the immune system, it means WBC, white blood cells, which always fight against the disease causing agent, employ some of the cells and these cells are called antigens। याद रहेगा, जब ये वायरस जब ये डेड और वीक माइक्रोब हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है या सॉलोड किया जाता है, देन द WBC एम्प्लॉय भेजता है अदर WBC टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स। क्योंकि वो डेड माइक्रोब्स होता है तो क्या हो गया कि जो फाइट करने गया, ठीक है, वो तो स्पेशल ऐसा सेल हो गया WBC जो उस माइक्रोब से फाइट करेगा। तो वो जो स्पेशल WBC है जो सिर्फ पर्टिकुलर माइक्रोब से फाइट करता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। याद रहेगा एंटीजन, इट मीन्स व्हेन डेड एंड वीक बैक्टीरिया इंजेक्टेड इन आवर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। समझ में आ गया, एंटीबॉडीज आर द सेल्स दैट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ओके, इट मीन्स एंटीबॉडीज क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी।
बॉडी की इम्यूनिटी को। इट मीन्स ऑलवेज फाइट व्हेन इन फ्यूचर बैक्टीरिया इन्वेडेड इन आवर बॉडी। ओके, it means vaccination is called immunization. It means practice of increasing the immunity. Immunization में क्या हो गया? Regularly our body given some of the antibiotics or vaccine. Vaccine are given in our body so that our body is ready to fight against those bacteria that causes diseases in future. Okay, and that is called immunization. समझ में आ गया? Immunization means practice of giving the vaccines in our body so that our body produce antigen to fight disease causing bacteria in future. चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो खान मैंने बताया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण फूड को क्या कर देता है? स्पॉइल कर देता है। उसको याद होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी भी बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? याद करो, फिर से बताओ जल्दी जल्दी, थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, याद आ गया? रेंसिडिटी। यस, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है? फूड स्पॉइल हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब उसको बचाएंगे कैसे? हाउ टू प्रिजर्व द फूड। हाउ टू प्रिजर्व द फूड इज द टॉपिक, जस्ट फूड प्रिजर्वेशन। फूड को बचाना है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया सो दैट फूड कैन नॉट बिकम फाउल, टेस्टलेस एंड टॉक्सिक। सबसे पहला काम मिल्क के बारे में स्पेशली। मिल्क इज हीटेड at 72 to 75 degree C for about 30 सेकेंड। अगर 72 से 75 डिग्री सी तक अगर 30 सेकेंड्स में 30 सेकेंड तक लगातार उसी टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर हम हीट करेंगे और बाद में उसको कूल करेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द मिल्क एंड मिल्क इज ऑलवेज अवेलेबल फ्रेश। चलो और कुछ करते हैं फूड को स्पॉइल करने से बचाने के लिए। हम उसमें साल्ट डालते हैं और शुगर डालते हैं। साल्ट और शुगर क्या करता है? याद रखना, साल्ट एंड शुगर रिलीज वाटर फ्रॉम द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बॉडी से सॉल्ट और शुगर क्या कर देता है? वाटर को रिलीज कर लेता है, मतलब उसमें से वाटर निकाल देता है, जिस कारण ग्रोथ रुक जाता है। याद होगा, याद रहेगा। सॉल्ट और शुगर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है बैक्टीरिया के बॉडी से क्या? वाटर, जिस कारण उसका ग्रोथ बंद हो जाता है। विनेगर क्या कर देता है भाई? ये उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है? ऑक्सीजन जो उसको चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा तो चाहिए, उसके सप्लाई को बंद कर देता है, यानी मीडियम को एसिडिक बना देता है जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाता। कुछ केमिकल्स भी हम लोग यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फूड आइटम। ओके, याद हो गया? ये रहा बैक्टीरिया का दुनिया। अब आगे हम लोग को कौन कौन सा दुनिया लेके आना? बैक्टीरिया के बाद क्या बचा? फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी। वायरस के बारे में तो हमने कुछ बताया है, बट वायरस का बड़ा दुनिया और भी देखेंगे। टिल देन बाय, कीप सेफ।